आफ्टर कार्बोहाइड्रेट वी विल स्टार्ट द प्रोटीन. तो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड है उसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम सल्फर. ओके, so whenever you draw the structure of amino acid they contain two group. One is called free amino group and second free carboxyl group, and there is a third group which is R means variable, यानी वहां कोई भी अटैच हो सकता. It just like the side chain, right? So the amino acid they have one free amino group, one free carboxyl group, and there is one R variable group. Amino group, okay, it is the basic in nature. ये तो सबको पता है amino group कैसा है, that is the basic in nature. And this carboxyl group, okay, carboxyl group हम कैसे लिखते हैं, COO. This carboxyl group, it is acidic in nature. Okay, so basically if you see the amino acid, you can see amino group also and carboxyl group also. So it is the basic nature of amino acid and the acidic nature of the amino acid. Okay, so basic nature and so as per the group, the nature of amino acid you can decide it. So what is the nature of amino acid? Free amino group, that is the basic, and free carboxyl group, that is the acidic in nature. So on the basis of that, we divide the amino acid into basic amino acid, acidic amino acid, and those who have both, you can say neutral amino acid. So what are the example of basic amino acid? Okay, so basic amino acid, okay, that is lysine and arginine. Okay, so you have to remember that is called this BALA, basic amino acid, that is lysine and arginine. Okay, so this lysine and arginine, they have both the group. Okay, it doesn't mean that कि basic है तो सिर्फ amino group रहेगा और acidic है तो carboxyl group रहेगा, ऐसा नहीं है. Why it is a basic? Because they have only one carboxyl group and two amino group. Okay, that is the two amino group. तो amino group अगर दो है, right? So amino group is more, so that is why it is a basic in nature. So basic amino acid, they are lysine and arginine. Okay, what are the example of basic? ये पूछते हैं exam में, right? Second is acidic amino acid. What are the example of acidic amino acid? Okay, that is glutamate. One is glutamate and another is aspartate. So you have to remember AGA. Okay, so here is BALA, here is AGA. Basic lysine and arginine, acidic glutamate and aspartate. So why it is acidic? Because they have more carboxyl group as compared to the amino group. क्योंकि carboxyl group दो है, यहाँ पर amino group ज्यादा है, right? So that is why it is the acidic type of amino acid. So देखा यहाँ पे दोनों है, carboxyl group भी है और amino group भी है. Now what are the example of neutral amino acid? Neutral यानी सेम रहेंगे, वहां पर एक ही amino group रहेगा. You can say there is one amino group and one carboxyl group. तो ये कौन सा हो गया, न्यूट्रल नेचर हो गया. सो न्यूट्रल वाले कौन से है, एलेनाइन, बाकी सब बचे हुए एलेनाइन, वैलाइन. ओके, दिस वैलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. एक ग्लाइसिन है, एलेनाइन, वैलाइन, ग्लाइसिन, फिनाइल एलेनाइन. ओके, एक फिनाइल एलेनाइन. So these are the example of your neutral. तो आपको हर वक्त पूछते हैं basic, that is BALA, that is what, lysine and arginine. Basic वाले कौन से, lysine, arginine, acidic, glutamate, aspartate. बहुत सिंपल है, acidic, glutamate,
ATE फॉर एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, नाम में ही लिखा है एसिड, यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि वो एसिडिक है करके, राइट। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड किस में जाएंगे, एसिडिक में जाएंगे। बेसिक में लाइसिन एंड आर्जिनिन, ओके, सो दैट इज लाइसिन एंड arginine, okay, that is BALA, you have to remember, these are about the basic various type of, that is called the amino acid. अब हम लोग देखते हैं there is a one term which is all the time which is called essential amino acid. What is essential amino acid? essential यानी जिसकी जरूरत है एनिमल को या ह्यूमन को, जिसकी जरूरत है, that is called essential. इसेंशियल अमीनो एसिड यानी ये ऐसे कौन से अमीनो एसिड है जो हमें जरूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी वो प्रोटीन या वो अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं करती, इसीलिए हमको बाहर से उसको खाना पड़ता है, राइट। सो दैट इज व्हाई, इसलिए वो इसेंशियल है। इसेंशियल बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। अगर बॉडी में अगर सिंथेसिस होता तो इसेंशियल बोलने की जरूरत ही नहीं रहती, रेडी। जैसे प्लांट में कुछ इसेंशियल वाली चीजें है ही नहीं, क्योंकि प्लांट सारी चीजें खुद सिंथेसाइज करता है, राइट। सो बेसिकली इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से है, दोज हु कैन नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंशियल। तो हमें वो कहाँ से मिलेंगे, हमें वो डाइट से मिलेंगे। हम जो भी कुछ खाते हैं उसमें से हमें वो अमीनो एसिड मिलेंगे, राइट। वो हमारे डाइट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज करती क्या नहीं, इसीलिए तो उसका नाम है इसेंशियल। नॉन इसेंशियल यानी जो हमारी बॉडी खुद होके अपनी बॉडी में सिक्रेट करती या तैयार करती, तो हमें वो खाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कैन नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। Now we will see what are the essential amino acid. तो उसके लिए एक ये रहता है शॉर्ट फॉर्म, हिल लैम्प VTT, ये आपको याद रखना है, राइट। सो वी विल स्टार्ट विथ हिल आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन हो गया, और उसके जैसे ही ल्यूसिन। उसके बाद एल पर से लाइसिन, एल पर से लाइसिन, एम पर से मिथियोनाइन, एंड पी पर से आपको ऑलरेडी पता है दैट इज फिनाइल एलानिन। ये हो गया आपका हिल लैम्प। वी पर से तो एक ही है, दैट इज कॉल्ड वैलाइन, और जो तुम्हारे टी पर से दोनों है, एक है ट्रिप्टोफैन और दूसरा है थ्रियोनाइन। ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनाइन। इस थ्रियोनाइन का ही थोड़ा सा चेंज करके क्या बनता है, हिस्टिडीन। क्या बनता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टिडीन, ओके। सो वी विल टेक आउट द हिस्टिडीन बिकॉज वी ऑलरेडी रोट हियर, दैट इज कॉल्ड द थ्रियोनाइन, ओके। सो थ्रियोनाइन व्हेनेवर देयर इज अ हिस्टिडीन ओनली, आपको याद रखना है। सो HIL LMP VTT, हिल लैम्प VTT हम लोग बोलते हैं उसको। सो आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनाइन, फिनाइलएलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनाइन। हिस्टिडीन यू कैन जस्ट कट इट ऑफ, हिल का जो हिस्टिडीन है यू हैव टू कट इट ऑफ बिकॉज देयर इज ऑलरेडी थ्रियोनाइन। सो दीज आर योर विच वन, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। अब जो नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल कौन से है, जो आपकी बॉडी ही सिंथेसाइज करती है। आपकी बॉडी सिंथेसाइज करने वाले वही दो, वन इज कॉल्ड एस्पार्टेट, जो एसिडिक वाले हैं, ग्लूटामेट, राइट। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों अमीनो एसिड आपकी बॉडी ही सिंथेसाइज करती है, राइट। दैट्स व्हाई दे आर नॉन एसेंशियल। इसमें एक प्रोलीन करके भी आता है, राइट। लेकिन आपको एग्जाम में नॉन एसेंशियल में आपकी बॉडी जो सिंथेसाइज करती है वो वाले पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक। जो एसिडिक नेचर वाले हैं, जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज करती है, राइट, खुद होके, एस्पार्टिक एसिड एंड दैट इज कॉल्ड ग्लूटामिक एसिड। कुछ सेमी एसेंशियल रहते, ओके। सेमी एसेंशियल यानी एसेंशियल यानी आपको वो अमीनो एसिड यू कैन नॉट सिंथेसाइज इन योर बॉडी, इसलिए आपको खाने में चाहिए। नॉन एसेंशियल यानी आपको वो
खाने में रहने की जरूरत नहीं, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वो अपने बॉडी में तैयार करती है, दैट इज एस्पार्टेट एंड ग्लूटामिक, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। अब जो सेमी एसेंशियल है वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में ही एसेंशियल रहते हैं। पर्टिकुलर कंडीशन यानी जब किसी की ग्रोथ होती रहती है, यानी बच्चा जब बड़ा होते रहता ड्यूरिंग चाइल्डहुड टू एडोलसेंस, या प्रेगनेंसी के वक्त मम्मी को लगते हैं, या लैक्टेशन के वक्त जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग होता है, ऐसे टाइम में ही ये एसेंशियल रहते हैं, बाकी टाइम में ये एसेंशियल नहीं रहते। इसीलिए ये जो हिस्टिडीन है यहां से निकलकर यहां डाला है, राइट। सो दिस हिस्टिडीन जो पहले एसेंशियल में था, नाउ विल केप्ट इनटू द सेमी एसेंशियल, हिस्टिडीन और एक आर्जिनिन। सो जो पहले हिस्टिडीन एसेंशियल, क्योंकि इसका ही फॉर्म है वो थ्रेओनाइन चेंज होके, सो इसीलिए हिस्टिडीन वी पुट इनटू द सेमी एसेंशियल। सो आपको यूजुअली पूछते हैं नॉन एसेंशियल कौन से है, तो वो एसिड वाले एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, ओके। एंड सेमी एसेंशियल में आपका हिस्टिडीन, क्योंकि वही हिस्टिडीन पहले हिल लैम वीटीटी में जाने वाला था, विच आर हिल हिस्टिडीन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन, लैम का LY दैट इज कॉल्ड लाइसिन मिथियोनाइन फिनिलानाइन वैलाइन ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनाइन। तो ये हो गए आपके एसेंशियल अमीनो एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हाउ यू हैव टू रिमेंबर द वेरियस टाइप ऑफ अमीनो एसिड। एसेंशियल यानी जो आपकी बॉडी तैयार कर नहीं पाती आपकी बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, आपको बॉडी को बाहर से खाना पड़ता है डाइट में, लेकिन आपकी बॉडी कौन सी एसिड वाले तैयार करती है, व्हाट आर द एसिडिक नेचर वाले, राइट। आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिड ऑलरेडी बहुत रहता है ना, तो एसिडिक वाले तैयार करती है अमीनो एसिड। कौन सा, दो ही है, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे एसिडिक नेचर वाले, राइट। कौन से एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बेसिक वाले कौन से है, क्या याद रखना बोला तो मैंने, बेसिक लाइसिन एंड आर्जिनाइन, दैट इज अ बाला, आई वांट यू टू रिमेंबर। एसिडिक को तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि एसिडिक में क्या होने वाला है, देयर आर एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे अमीनो एसिड के, तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है, जो अमीनो एसिड का सिंपल स्ट्रक्चर है, वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिन, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइसिन। तो पहले तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है, राइट। इन अमीनो एसिड द कार्बन इज अटैच्ड टू, देयर इज वन अमीनो ग्रुप, वन इस तरह से निकालता मैं यहां पर, एक्चुअली C इधर होना चाहिए और H, तो दैट इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप, हियर हाइड्रोजन, एंड दिस इज व्हाट आई सेड इज अ वेरिएबल, यहां पर कुछ अटैच हो सकता। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग अगर सबसे पहला सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट इज फर्स्ट इज ग्लाइसिन। अगर ग्लाइसिन का अगर आपने स्ट्रक्चर देखना हो तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसे है, यहां पर NH2, यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहां पर H है। नाउ वेयर देयर इज R इज रिप्लेस्ड बाय H। बहुत सिंपल है, अगर R की वेरिएबल की जगह ये जो वेरिएबल ग्रुप चेंज होते रहता, वहां पर अगर H लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिन। क्या हो गया ये, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइसिन। अगर आपने R की जगह एक और निकाल के रख देते, ये तीनों R ग्रुप है, अगर R की जगह H लगाए तो ग्लाइसिन हो जाएगा, ओके। अगर R की जगह आपने CH2 अगर लगाए, व्हाट इज दैट कॉल्ड, CH2 और CH3, देन इट इज सीरिन, नॉट सीरिन, एलेनाइन, ओके। सो यहां पर आपने अगर CH3 लगाया, व्हाट यू डू हियर, CH3, then it is what, serine, okay, then it is called which amino acid, so not serine, sorry, ये हो गया आपका ग्लाइसिन, ये होगा एलानीन, दैट इज कॉल्ड एलानीन। और अगर सीरीन अगर लगाना है आपको तो R की जगह आपको क्या लगाना है, दैट इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल, CH2OH। तो क्या लगेगा यहाँ पर, CH2OH, ओके। सो ये हो गया ग्लाइसिन, एलानीन एंड सीरीन। सो ये जो R ग्रुप है वही चेंज होने वाला है,
and now the name of amino acid will be changes. So first is the glycine, simplest structure है, H लगाए तो glycine बन जाएगा, मिथाइल ग्रुप लगाए तो alanine हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप लगाया इथाइल अल्कोहल का, then it will converted into which amino acid? That is called the serine. That is called which one? That is called serine. So simplest structure of amino acid कैसा है हम लोगों ने देखना है, that is COOH. Here there is a one carboxyl group, one amino group, हाइड्रोजन, एंड दिस इज द वेरिएबल ग्रुप. और इस वेरिएबल ग्रुप को हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. अगर H लगाएंगे तो ग्लाइसिन बन जाएगा, मिथाइल लगाएंगे तो CH3 लगाएंगे तो एलेनाइन बन जाएगा, CH2OH लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये सेरीन काइंड ऑफ अमीनो एसिड. अब मैंने बोला यहाँ पर सल्फर रहता, सम ऑफ द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सम अमीनो एसिड दे आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. sulfur containing amino acid. So sulfur containing amino acid cysteine, cysteine and methionine. कौन से है? cysteine, cysteine, ओके. एक है आपका that is called cysteine, TEINE. सेकेंड है cysteine and methionine. So what are the sulfur containing amino acid? Cysteine and methionine. Okay. Now this is all about your which one? Various type of amino acid. Okay. So if you remember, there is one amino acid, tyrosine. These are sulfur containing cysteine, cysteine and methionine. There is one that is called tyrosine. This tyrosine amino acid is need for synthesis of thyroxine. किसके लिए लगता है? सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, विटामिन है ये, राइट. दिस इज योर विटामिन. सो थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए क्या लग रहा है आपको? हार्मोनल के सिंथेसिस, थायरोक्सिन, दैट इज कॉल्ड टायरोसिन. और किसके लिए? कौन से हार्मोन के लिए? ये थायरोक्सिन हार्मोन के लिए टायरोसिन लगता. और किसके लिए लगता टायरोसिन? एड्रीनालिन सिक्रीट. अगर एड्रीनालिन बनाना है, ये आपका जो हार्मोन है, इसके लिए भी आपको कौन सा अमीनो एसिड लगता है? टायरोसिन. देयर इज वन दैट इज कॉल्ड मेलानिन. मेलानिन अगर बनाना है तो अमीनो एसिड कौन सा लगेगा आपको? टायरोसिन. यानी देखो, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, मेलानिन, इन सब के लिए कौन सा अमीनो एसिड लगता है? दैट इज कॉल्ड टायरोसिन. सो दिस अमीनो एसिड टायरोसिन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, एड्रेनालिन एंड मेलानिन. यानी कहाँ उन अमीनो एसिड का यूज? सल्फर कंटेनिंग वाले कौन से? सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथियोनाइन. ओके. सो कभी कभी आपका जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है वो अपने आप को हीम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकता है, राइट. ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन प्लांट में इट इज नथिंग बट द प्रीकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड. इंडोल एसिटिक एसिड का ही प्रीकर्सर कौन सा अमीनो एसिड है? दैट इज कॉल्ड द ट्रिप्टोफैन. ओके. इफ यू रिमूव द अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड, तो अगर आपने कोई भी अमीनो एसिड का लाइक NH2 COOH H या समथिंग आर, अगर आपने इस अमीनो एसिड का अगर अमीनो ग्रुप निकाल दिया, then if you see here, this is nothing but the structure of your which one? That is just like a sugar molecule. just like कौन सा हो गया ये? It will change into the glucose. अगर वहां अमीनो ग्रुप निकाल दो, कुछ और ऐड कर दो, then it can be converted into glucose. Okay. So this is all about your which one? That is called the amino acid. ये तो हो गया आपका कौन सा? That is called the amino acid. There are certain terms in amino acid that is called polar and non-polar. Okay, that is also people are going to use. polar क्या है, non-polar क्या है, right? So amino acid क्या लगता है उसमें? सल्फर कंटेनिंग में कौन से? सिस्टीन एंड मिथियोनाइन. एसिडिक वाले कौन से? दैट इज कॉल्ड ग्लूटामेट, एस्पार्टेट. ओके, ग्लूटामेट हो गया, एस्पार्टेट हो गया, राइट. सो दिस ग्लूटामेट and aspartate, right? So these are basically your which one? That is called your acidic amino acid. That is called your which one? Acidic amino acid हो गए. बेसिक नेचर वाले भी आपको पता है, that is called
एल. ओके, सो बेसिक नेशन जो आपको मैंने बोला था बेसिक के लिए एल और ए आपको याद रखना है, लाइसिन एंड अर्जिनिन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, अमीनो एसिड वाले आपके सारे क्लासिफिकेशन हो गए. अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन. विल सी द प्रोटीन, क्योंकि अमीनो एसिड को ही जोड़कर आप क्या बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन बनेगा. राइट, सो फर्स्ट वी विल सी द प्रोटीन. The term protein was given by Berzelius. Okay, who gave the term protein? Berzelius. Okay, nobody will ask you this one, but it is very important now. And you can say it is nothing, protein are nothing but the polymer of amino acid. यानी बहुत सारे मोनोमर यूनिट जो है अमीनो एसिड के, वो अगर आप जोड़ोगे और वो पॉलीमरिक चेन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम बॉन्ड, एंड दैट बॉन्ड इज पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. शुगर में क्या था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. यहाँ कौन सा प्रोटीन में है, ग्लूकोज में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड. आपको याद रखना है. राइट, सो दे आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. पेप्टाइड बॉन्ड कैसा रहता है, CONH बॉन्ड. सो कार्बोक्सिल ग्रुप का CO एंड अमीनो ग्रुप का NH, ये जो बॉन्ड बनता है दो इसमें अमीनो एसिड में, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और यू कैन से CONH बॉन्ड. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द प्रोटीन विच इज एबेंडेंट प्रोटीन, पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा मिलने वाला जो प्रोटीन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोटीन, रुबिस्को. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोटीन, Rubisco. Basically Rubisco is the protein and it is the name of enzyme. It is the name of enzyme which is used in plant. क्योंकि आपके पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा प्लांट है, और प्लांट में जो सबसे ज्यादा एंजाइम यूज करते हैं वो कौन सा है, रुबिस्को. एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, बट ऑल एंजाइम 100% दे आर प्रोटीन. ओके, सो एक्सेप्ट द राइबोजाइम. तो ये जो रुबिस्को एंजाइम है प्लांट में जो यूज करते हैं, ये सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन है बायोस्फीयर में. राइट, सो व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म, रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीनेज. रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज. कार्बोक्सिलेज करके कभी वो एक्ट करता है, लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजनेज करके वो एक्ट करेगा. ये दोनों एक्शन रहेगी आपकी इस एंजाइम की. राइट, आपके वो फोटोसिंथेसिस में या रेस्पिरेशन में आपको ये सारा आ जाएगा प्लांट के इसमें. और कोलेजन, इफ यू सी द कोलेजन इज द एबेंडेंट प्रोटीन. ये तो प्लांट छोड़ो, पूरे वर्ल्ड बायोस्फीयर का पूछा मैंने. अगर मैंने सिर्फ एनिमल का पूछा तो कौन सा आएगा, प्रोटीन कोलेजन, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म दे हैव द कोलेजन इन मोर अमाउंट. राइट, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कोलेजन. क्या है, बेसिकली प्रोटीन है. सो दिस इज योर विच वन, प्रोटीन. प्रोटीन टर्म वाज गिवन बाय Berzelius. प्रोटीन्स आर नथिंग बट द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइंड टुगेदर बाय CONH बॉन्ड यानी पेप्टाइड बॉन्ड. और सबसे ज्यादा मिलने वाला रुबिस्को, पूरे बायोस्फीयर वाला. ओके, और अगर सिर्फ एनिमल का अगर पूछा तो कोलेजन. प्लांट का पूछा तो 100% रुबिस्को रहेगा. नाउ एज पर द रिक्वायरमेंट, द प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, व्हाट इज सेकेंड क्लास प्रोटीन. फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी जिसमें सारे आपको जो जो चाहिए वो सब एसेंशियल अमीनो एसिड. राइट, एसेंशियल अमीनो एसिड हम लोगों ने पहले ही पढ़े हैं. राइट, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल. एसेंशियल में आपको क्या याद रखने को बोला था मैंने, हिल लैम्प VTT, हिल मेका H हिस्टिडीन. सेमी एसेंशियल में चला गया. राइट, तो अभी HIL आइसोल्यूसिन ल्यूसिन, लैम्प LYMP लैम्प. ओके, लाइसिन मिथियोनाइन एलानाइन. ओके, एंड VTT वैलाइन. ओके, थ्रियोनाइन एंड ट्रिप्टोफैन. तो ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड आपको एनिमल में मिलते हैं. तो जो एनिमल what is that, जो नॉन वेजिटेरियन लोग रहते, राइट, सो वेन एवर दे आर ईटिंग द एनिमल दे आर गेटिंग ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड. इसीलिए ऐसा बोलते कि नॉन वेजिटेरियन में यू विल गेट ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड. राइट, दैट इज गुड. अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है और वो नॉन वेज फूड खा रहा है, सो ही विल गेट ऑलमोस्ट ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड.
अगर कोई वेजिटेरियन है, प्योरली वेगन है, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, राइट, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड एब्सेंट रहते हैं. सम ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे. तो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन. इसको सेकंड क्लास प्रोटीन क्यों बोलते हैं, कि उसमें कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड एब्सेंट रहते. अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे अर्थ के सारे लोग नॉन वेजिटेरियन बन जाएंगे करके, राइट. क्योंकि क्या होता है, वेन एवर यू आर ईटिंग द नॉन वेज फूड एट दैट टाइम आपको एसेंशियल अमीनो एसिड तो मिल जाते हैं, उसके साथ साथ आपको लिपिड और फैट अलॉन्ग विद द कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल भी ऐड हो जाता है आपके नॉन वेजिटेरियन में. यानी अगर कुछ अच्छा है तो साथ में थोड़ा कुछ बुरा भी रहेगा. आई एम नॉट सेइंग कि नॉन वेजिटेरियन बुरे रहते या वेजिटेरियन अच्छे रहते, या आई एम नॉट लाइक डिटरमाइनिंग हु इज द बेस्ट, बिकॉज दिस इज द फूड. सम कैन बी वेजिटेरियन, सम कैन बी नॉन वेजिटेरियन, सम कैन बी प्योरली अ वेगन. ओके, सो इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्लास, दिस इज द साइंस पार्ट, आपको पता होना चाहिए. हम लोग नॉन वेजिटेरियन फूड को फर्स्ट क्लास क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं. और हम लोग सेकंड क्लास प्रोटीन किसको बोलते हैं, प्लांट जो प्रोटीन है वो सेकंड क्लास है, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ अमीनो एसिड एब्सेंट है, राइट. एसेंशियल वाले एब्सेंट है, क्योंकि एसेंशियल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन एसेंशियल तो आपकी बॉडी एस्पार्टेट और ग्लूटामेट खुद ही तैयार कर देती है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन.